In the second part of chapter 2, we have learnt about art of Indian artisans. Now, in the third part, we are going to learn about fine arts of India, in which we will learn about Indian music and art of dance. So, let's start the third part of chapter 2. Fine arts of India. Singing, playing, dancing, and performing roles of different characters is a unique feature of Indian culture. Entertainment with moral education has been imparted since ancient times through dramas based on the greatest scriptures like Ramayana and Mahabharata. So, what is said here? Singing, playing, dancing, and performing roles of different characters. Performing roles of different characters means performing drama. So all these arts are unique features of Indian culture, and entertainment with moral education has been imparted means has been given to people since ancient times. So ancient times से through ड्रामास परफॉर्म करके लोगों को मोरल एजुकेशन दिया जाता है बेस्ड ऑन द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड महाभारत. सो किसके बेस पर ड्रामास बनाया जाता है? तो रामायण एंड महाभारत बोथ आर द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर्स एंड आउटस्टैंडिंग स्क्रिप्चर्स जिसके ऊपर ड्रामास बनाया जाता है एंड मोरल एजुकेशन भी लोगों को दिया जाता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट म्यूजिक. Indian music is unique in the world from the point of view of tune, rhythm and harmony, and so it is different from the music of the other countries of the world. So one of the important question that the important features of Indian music are tune, rhythm and harmony. Because of that Indian music is considered as unique, and because of that Indian music is different from the music of other countries of the world. सामवेदा वन आउट ऑफ द फोर वेदास में से एक वेद है जो सामवेदा is considered to be associated with music. One of the most important questions. Samveda is considered to be associated with music. Which Ved is considered to be associated with music? So Samveda. Richas of Samveda are sung with tune and rhythm of music. So ये सामवेदा के जो रिचास है वो ट्यून एंड रिदम के साथ गाई जाती है. म्यूजिक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग. म्यूजिक में सिंगिंग एंड प्लेइंग मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता है, ये दोनों बातें इन्वॉल्व होती है. सा रे गा मा पा धा नी आर द 7 वॉवेल्स ऑफ म्यूजिक. अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सा रे गा मा पा धा नी. All these are 7 vowels of music. Indian music can be divided mainly into 2 parts. Which are these 2 parts? Classical music जिसे हम सांस्कृतिक म्यूजिक बोलते हैं, एंड फोक म्यूजिक मतलब लोक संगीत बोलते हैं. सो these 2 are important parts of Indian music. We have 5 ragas in classical music. Again, one of the most important questions. We have 5 ragas of classical music. So first one Shri, second Deepak, third Hindol, fourth Megh, fifth Bhairavi. So all these 5 are important ragas of classical music. It is believed that all these ragas naturally came out of the Panchmukh of Lord Shiva. Lord Shiva के पंचमुख 5 मुख है. सो उन 5 मुख में से एक एक करके रागास केम आउट, बाहर आए, एमर्ज हुए. इन एंशियंट इंडिया many texts were written on music, out of which the introduction of 3 Sangeet Makrand, Sangeet Ratnakar and Sangeet Parijat. So again one of the most important questions. Introduction of 3 books. Okay, 3 books are based on music which are written
during ancient time. So we are going to learn in detail about all these three books. Which are these three books? Sangeet Makrand, Sangeet Ratnakar and Sangeet Parijat. First one, Sangeet Makrand. A music scholar Narad, who had written Sangeet Makrand in about 900 BC. It describes 19 venas and 101 rhythm which are useful even today. So, संगीत मकरंद ये किसने लिखी है? सो नारद ने लिखी है. कब लिखी है? तो 900 BC. BC मतलब बिफोर क्राइस्ट लिखी है. इट डिस्क्राइब्स, इसमें क्या है? तो संगीत मकरंद बुक में 19 विनास के बारे में और 101 रिदम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जो आज भी बहुत ही यूजफुल है. सेकेंड वन, संगीत रत्नाकर. द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट वॉज पंडित सारंगदेव. सो दिस टेक्स्ट मीन्स दिस बुक संगीत रत्नाकर इज रिटन बाय पंडित सारंगदेव. ही लिव्ड इन दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी बोलते हैं. सो ही वॉज फैमिलियर विद साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक. So he lived in Daulatabad, and because of that he was familiar with South and North Indian music. Pandit Vishnu Narayan Bhatkhande considers Sangeet Ratnakar as the most authentic book on music. One of the most important questions, किसने कंसिडर किया था? सो पंडित विष्णु नारायण भतखंडे कंसिडर्स संगीत रत्नाकर बुक को ऑथेंटिक बुक उसने कंसिडर की. ऑथेंटिक मतलब वन ऑफ द ट्रस्टवर्दी एंड रियल बुक ऑन म्यूजिक. संगीत रत्नाकर इज बिलीव्ड टू बी यूनिक in understanding all the aspects of music. Means to understand in detail about music, Sangeet Ratnakar is believed to be one of the important and outstanding book. Third one, Sangeet Parijat. Sangeet Parijat is a very important book on music. Sangeet Parijat is one of the important book considered related to music. Pandit Ahobale had written this text in the year 1665 on northern Hindustani music. So किसके बारे में लिखा गया है? So northern Hindustani music के बारे में लिखा गया है. कब लिखा? तो 1665 में लिखा. किसने लिखा? So संगीत पारिजात book is written by Pandit Ahobale. He had noted one important characteristic feature of all the ragas, saying that the ragas have their own individual identity and characteristic. He has described 29 types of tunes. So in this book, Pandit Ahobale has described how many types of tunes? So 29 types of tunes are described in this book. As well as he had also noted about one of the important characteristic of ragas, that each and every raga has its own identity and importance. Next para. During the time of Alauddin Khilji, talented Amir Khusro was very famous. So during the reign of Alauddin Khilji, Amir Khusro, one of the talented person, was very famous. Due to his contribution in the field of music and poetry, he was known as Tutiya-Hind, means parrot of India in Indian history. So he had given immense contribution in the field of music and poetry, and because of that he was known as Tutiya-Hind, means parrot of India. Bhakti movement started in India in 15th and 16th century, which you have already learnt in standard 8. In 15th and 16th century, Bhakti movement started. Bhakti Sangeet of Chaitanya Mahaprabhu, Kabir, Tulsidas, Mirabai and Narsi Mehta, etc. was very famous. So about all these people you have learnt in detail in standard 8. So all these people, Chaitanya Mahaprabhu, Kabir, Tulsidas, Mirabai and Narsi Mehta, they had given immense contribution in the Bhakti movement. The disciples of Swami Haridas. Who is this person? Disciple मतलब शिष्य. So स्वामी हरिदास के शिष्य कौन थे? बैजू बावरा, जिसे बैजनाथ भी बोलते हैं. तानसेन एंड डुएट गर्ल मतलब दो गर्ल. सो दो गर्ल्स, Tana and Rini, are considered as red jewels of music of 15th century. So 15th century में बैजू बावरा,
तानसेन एंड ड्यूएट गर्ल ताना एंड रेनी, इन तीनों को रेयर ज्वेल्स मतलब बहुत ही कीमती हीरे माने जाते थे. Let's learn about art of dance. The word nritya has been derived from the original Sanskrit word nrit, means nrit is a Sanskrit word from which the word nritya has been originated, which means in English dance. Dance is one of the mediums of realizing beauty with tal and lay, means rhythm and harmony, for the realization of aesthetic joy. मीन्स एस्थेटिक जॉय मीन्स आर्टिस्टिक ब्यूटी. सो ये आर्टिस्टिक ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए ताल एंड लय मीन्स रिदम एंड हार्मनी से ये डांस एक माध्यम है. शिवा इज देयरफॉर ऑल्सो सेड टू बी नटराज, एंड यहाँ पर एक सेंटेंस है, शिवा द ओरिजिनेटर ऑफ डांस इज द लॉर्ड ऑफ डांस. सो शिवा को लॉर्ड ऑफ डांस भी कहा जाता है. शिवा इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिनेटर ऑफ डांस एज वेल एज शिवा को नटराज भी कहा जाता है. सो शिवा को लॉर्ड ऑफ डांस एंड नटराज दोनों वर्ड्स शिवा के लिए यूज किया गया है. ये है यहाँ पर नटराज गॉड ऑफ डांस, उसके स्टेच्यू दी गई है. ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन म्यूजिक फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ to teach this art of dance to the people. He means Lord Shiva was the first who bring down music from heaven to earth. स्वर्ग से पृथ्वी पर ये डांस की जो आर्ट है वो लोगों को किसने सिखाई? तो लॉर्ड शिवा ने सिखाई. इंडिया हैज़ वाइड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस. सो इंडिया में ये वेराइटी ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस है. क्लासिकल मतलब सांस्कृतिक नृत्य. सो ये ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस में कौन कौन से डांसेस है? सो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी. सो नाउ we are going to learn about all these classical dances in detail. Let's learn about Bharatnatyam. The origin of Bharatnatyam is believed to be Tanjore district in Tamil Nadu. मतलब तमिलनाडु में जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम तांजोर है, वहाँ से भरतनाट्यम की शुरुआत, ओरिजिन मतलब शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है. There are two books, नाट्य शास्त्र written by Bharat Muni and Abhinav Darpan written by Nandikeshwar, which are the original sources of Bharatnatyam. So ये दोनों बुक्स है, उसमें भरतनाट्यम की ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सभी दी गई है. One of the important questions which can be asked in exam. Apart from Gopi Krishna and Mrinalini Sarabhai, ये दोनों के अलावा the actresses like Vaijantimala and Hema Malini etc. are considered to be the preservers of this heritage. So ये भरतनाट्यम की आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए वैजंतीमाला एंड हेमा मालिनी ये दोनों एक्ट्रेसेस और उसके अलावा गोपी कृष्णा एंड मृणालिनी साराभाई ये चारों ने बहुत सारा योगदान दिया है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट कुचिपुड़ी डांस. दिस स्टाइल ऑफ डांस वॉज क्रिएटेड इन 15th century. सो 15th century में ये कुचिपुड़ी डांस का ओरिजिनेट हुआ था. इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ विमेंस ब्यूटी. सो ये डांस में इम्पॉर्टेंस कौन सा होता है? सो विमेंस ब्यूटी का इम्पॉर्टेंस होता है. डिफरेंट पॉजेज एंड जेस्चर्स परफॉर्म्ड बाय मेल एंड फीमेल डांसर्स आर वोवन इन द फाउंडेशन ऑफ दिस डांस. मतलब डिफरेंट पॉजेज एंड जेस्चर्स जो मेल एंड फीमेल है उसके द्वारा जो भी डिफरेंट पॉजेज एंड जेस्चर्स मतलब एक्शंस परफॉर्म की जाती है वो कनेक्टेड है किसके साथ? तो ये कुचिपुड़ी डांस के साथ कनेक्टेड है. कुचिपुड़ी इज़ फेमस इन आंध्र प्रदेश. कहाँ का डांस है? तो आंध्र प्रदेश स्टेट का डांस है. गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू etc. are the well-known dancers who have preserved this ancient tradition. So this कुचिपुड़ी is the ancient traditional dance जिसको प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किसने योगदान दिया है? सो राजा रेड्डी, गुरु प्रहलाद शर्मा, शोभा नायडू ये सभी डांसर्स ने प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है. नेक्स्ट वन कथकली. दिस स्टाइल ऑफ डांस इज़ वेरी फेमस इन केरला. ये केरला के बहुत ही फेमस डांस है. द वर्ड कथकली हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रामास बेस्ड ऑन एंशिएंट एपिक्स रामायण एंड महाभारत. सो रामायण एंड महाभारत ये दोनों एंशिएंट एपिक्स है एंड मिक्स्ड ड्रामास ऑफ संस्कृत एंड मलयालम. संस्कृत एंड मलयालम के जो मिक्स्ड ड्रामास थे तो उनमें से ये कथकली वर्ड डिराइव मतलब लिया गया है.
The characters of this art were beautiful plated attires. Attires मतलब ड्रेस. So beautiful plated cloth ड्रेस बनाया जाता है स्पेशल. वो ये कैरेक्टर्स मतलब कथकली डांस जो परफॉर्म करते हैं वो पहनते हैं. We have to read their facial expressions to recognize the characteristics of the character. जो भी कैरेक्टर परफॉर्म करता है डांस उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन को हमें रीड करना पड़ता है. द क्राउन दे पुट ऑन इज़ वेरी आर्टिस्टिक. जो भी क्राउन मुकुट पहनते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक होता है. द कैरेक्टर परफॉर्म्स हिज और हर डांस विथ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड पॉजेस ऑफ हैंड्स टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ त्रिलोक. सो त्रिलोक के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये जो भी डांस परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन से एंड पॉजेस ऑफ हैंड्स मतलब डिफरेंट एक्शन पॉजेस से वो त्रिलोक के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं. दे कम इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन विद द लाइट ऑफ अर्दन लैम्प ओनली. सो कैसे वो कर्टेन मतलब स्टेज पे कैसे आते हैं, सो लाइट ऑफ अर्दन लैम्प दिया लेकर आते हैं. पोएट ऑफ केरला श्री वल्लाथोड़, कलामंडलम, Krishna Prasad and Shivraman etc. have earned great fame in the nation and worldwide. Means not only in India but also in the whole world these people have earned great fame. मतलब they have become famous in Kathakali. Now let's learn about Kathak dance. The line कथन करे सो कथक कहावे is related to the Kathak dance. So कथन करे सो कथक कहावे मीन्स डांस करते करते जो भी स्टोरी या मैसेज है उसको डिस्क्राइब करना. सो ये जो लाइन है ये कथक डांस में उसके साथ रिलेट होती है, कनेक्ट होती है. द कथक डांस नरेट्स द लाइफ इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. कथक डांस में लॉर्ड कृष्णा के जो भी इंसिडेंट्स है, लाइफ इवेंट्स है, वो सभी को नरेट किया जाता है. इट इज़ observed that it has developed मतलब कथक डांस has developed with श्रृंगार भक्ति of वैष्णव कम्युनिटी. वैष्णव कम्युनिटी के जो लोग हैं उसके द्वारा श्रृंगार भक्ति की जाती है, उसके साथ ये कथक डांस डेवलप हुआ है. इन दिस स्टाइल ऑफ डांस डांसर टर्न्स अराउंड वन लेग. एक पैर पे ये डांसर जो है वो घूमते हैं. एंड शोज रेफरेंसेस ऑफ डांस एंड अदर रेफरेंसेस डांस के दिखाते हैं. वीमेन वेयर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, WEAR. वीमेन वेयर नैरो ट्राउजर्स एंड फ्रिल्ड अटायर. सो कौन से ड्रेसेस पहनते हैं वीमेन ये डांस करते समय, सो ट्राउजर्स, नैरो ट्राउजर्स एंड फ्रिल्ड अटायर पहनते हैं. दिस स्टाइल ऑफ डांस हैज़ बीन केप्ट अलाइव मतलब प्रिजर्व किया, अभी तक सुरक्षित रखा. किसने, सो पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी एंड कुमुदिनी लखिया ने. Now next one, Manipuri dance. The people of Manipur dance on every occasion and festival. मतलब ये मणिपुर के जो people है वो every occasion and festival पे डांस करते हैं. This dance style is chiefly based on रासलीलास and बाल लीला of श्री कृष्णा. सो ये जो मणिपुर का जो ये डांस स्टाइल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो रासलीला एंड बाल लीला ऑफ लॉर्ड कृष्णा. मणिपुरी डांस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. कौन से 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो लस्या एंड तांडव. द प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट इज नोन एज कुमिन. कुमिन मतलब ये जो है ग्रीन कलर का ये पेटीकोट, इसके उसे कुमिन कहा जाता है. एंड एट द सेम टाइम सिल्क ब्लाउज एंड अ बेल्ट आर पुट ऑन अराउंड द वेस्ट. सो कमर पे ये बेल्ट भी पहनते हैं एंड सिल्क ब्लाउज पहनते हैं. गुरु अमोबी सिंह, अटम्बो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता एट्सेट्रा हैव गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम. मतलब ऑल दिस पीपल हैव become famous in the whole world for Manipuri dance.